हाँ जी। सब अगर ओके करते हैं फिर हम इसके जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो कर लेते हैं। वी गुड? ठीक हो गया। इसी पार्ट टू के जो हमारे फर्स्ट फ्यू एमसीक्यूज है 11, 12, 13 एंड 14। इसके लिए मैं टेप को प्ले करता हूँ। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आपने फॉलो करना है। पहला स्टेप, एक ही सीक्वेंस में आएंगे। जब वो आपको टाइम देंगे, रीड द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस बोथ। कीवर्ड बेशक दोनों के मार्क कर लें। टिप सिर्फ एक दूंगा। इसके अंदर जो टिप है वो ये है कि हमेशा क्वेश्चन को फोकस करना है, ऑप्शंस को नहीं। तीनों ऑप्शंस वो बोल देते हैं, जैसे 1923 है, 1924 है और 1926 है। हो सकता है वो तीनों बोल दें, मगर अगर इन तीनों को बोल दिया तो आंसर क्या है वो क्वेश्चन बताएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टीवनसन वॉज फाउंडेड इन, ये इसकी बुनियाद कब रखी गई है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ओरिजिनली स्टीवनसन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर। ये ओरिजिनली का वर्ड दूसरी बार आ रहा है, पिछले हफ्ते के लेक्चर में भी ओरिजिनली का वर्ड आया था और मैंने आपसे पूछा था कि इसका सेंस क्या बन रही है। एग्जैक्टली exactly. यहां पर भी इसकी सेंस वही है कि इनिशियली, ठीक है, जब स्टीवनसन ने काम शुरू किया तो इन्होंने कौन सी चीज बनानी शुरू की। अब यहाँ पे लिखा है ना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये जो वर्ड है ना गुड्स का, ये एक्चुअली प्रोडक्ट्स के लिए यूज करें, फिनिश्ड प्रोडक्ट या जो भी इनकी प्रोडक्ट है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया। अगर 13 में आप जाए, यहाँ पे लिखा है जी व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द कंपनी प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मीन्स कंपनी की लोकेशन। ठीक है। अब जो भी स्पीकर है, और पार्ट टू के अंदर आपकी एक्चुअली आती है वो मोनोलॉग। जैसे भी एक ही शख्स ने डायरेक्शंस दी हैं, इसके अंदर भी वन पर्सन इज गोइंग टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन। और 14 कह रहा है जी द प्रोग्राम फॉर द वर्क एक्सपीरियंस ग्रुप इंक्लूड्स। जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस के लिए, उनके प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इनमें से एक ही ऑप्शन उसका आंसर बनेगा। सो आई विल प्ले ऑल फोर, लिसन एंड देन वी विल डू इट टुगेदर। Questions before we move. Director of a company called Stevenson's, welcoming a group of work experience students. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning, everyone, and welcome to Stevenson's, one of the country's major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your 2 weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year, I've been the managing director. Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. That was in 1923. He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926, although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. He was a very determined young man. Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry, although in fact that never came about, and for the automotive industry, that is cars and lorries. However, there was a delay of 5 years before that happened, because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. Over the years, we've expanded the premises considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years.
I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department, starting this morning with research and development. And you'll all spend some time in each department, observing what's going on and talking to people, as long as you don't stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week to find out how the group were getting on, but your school isn't able to arrange that this year. ऑलराइट जी, आंसर्स को फाइनल करें और जो मैंने ट्रांसफर शीट दी उस पर लिख लें ऑप्शंस जो भी आपने फाइनल की, ए, बी और सी। एंड एज पर द रिक्वायरमेंट एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन आंसर होगा। ऑलराइट जी, लिख लिया? ठीक है, इसको दोबारा सुनते हैं और आंसर्स को फाइनल करते जाते हैं साथ साथ। Good morning, everyone, and welcome to Stevenson's, one of the country's major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your 2 weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year, I've been the managing director. Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. That was in 1923. ऑलराइट जी, क्या किया 1923 में उसने? ही लेफ्ट स्कूल। क्वेश्चन किस पे सेट हुआ है? फाउंडेड। एक्चुअली बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, ठीक है? तो कंपनी स्टीवनसन ने स्टार्ट की थी, तो वो बेसिकली इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि इन्होंने शुरू कब की थी। ठीक है जी, तो 1923 इज आउट। 1923 उन्होंने सबसे पहले बोला, बट दिस इज अबाउट स्टीवनसन्स लीविंग स्कूल, नॉट अबाउट फाउंडिंग द कंपनी। अगली स्टेटमेंट। He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926. He set up his company अप्रेंटिसशिप खत्म करने के बाद। कब शुरू की जिसने? 1926, जो किसका आंसर है। 1 के बाद वो सीधा ऑप्शन सी पे आ गया। Although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. Although he started making plans, ठीक है? अब इसमें प्लान्स हैं इस कंपनी के। क्वेश्चन आपका सेट हुआ है कि कंपनी कब बनी है। So, अगर आप क्वेश्चन को फोकस करेंगे, यू विल नेवर लूज द ऑप्शन। दैट इज द ट्रिक इन एमसीक्यूज। जब एमसीक्यूज प्ले हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपने साथ साथ क्योंकि पढ़ना है इसको, तो आप ऑप्शंस पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, बट नेवर एवर फॉरगेट कि व्हाट इज द क्वेश्चन। वो जो आपको टाइम देते हैं ना, क्वेश्चन को आपने सेट करके जेन में रखना होता है, ठीक है? सो अगर आपका फोकस यहाँ पे है, इस एरिया में, ड्यूरिंग द टेप इज बीइंग प्लेड, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन का जो प्राइमरी वर्ड है ना, वो आपने से फोकस रखना है। फाउंडेड इन की मैंने बात करनी है, नॉट अबाउट लिविंग द स्कूल, नॉट अबाउट द प्लानिंग ऑफ द कंपनी, बट बुनियाद कब रखी गई थी इसकी। सो अब उसने तीनों ऑप्शंस बोली हैं। सीक्वेंस ये है, पहले ए पे बात की है, फिर सी पे बात की है, फिर बी पे बात की है। गुड। किसी भी इंफॉर्मेशन को उसने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया कि इसमें फाउंड नहीं हुई कंपनी, इसमें फाउंड नहीं हुई है। जिस डेट पे जो है बस उसके इवेंट्स बता दी। हाँ जी, ओके हो गया। इसका आंसर था सी। ओके जी, आगे चलते हैं। अब आपने साथ देखना है कि ट्रांजिशन कैसे हो रही है। मैं टेप को थोड़ा सा पीछे करूंगा क्योंकि वो कंटिन्यूटी में बात करते हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर 11 से 12 पे कैसे हैं, ये भी हमने सीखना है, और फिर हम इसका आंसर भी पिक करेंगे। He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926, although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. He was a very determined young man.
Stevenson's long-term plan was to manufacture components. मैन्युफैक्चर, आमतौर पे दो तरह की ट्रांजिशंस होती हैं यहाँ पे। एक को हम बोलते हैं क्वेश्चन कीवर्ड और एक को बोलते हैं जनरल कीवर्ड। यहां पर उन्होंने जब बात खत्म की तो उन्होंने अगले स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है उसका कोई ना कोई एक प्राइमरी वर्ड पिक कर लिया। मैन्युफैक्चर का वर्ड बोला है, नाउ यू नो कि अब वो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गया। सो दैट इज मोस्टली दे डू इन द आइल्स पेपर, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज। ट्रांजिशन ओके हो गई है, वो वर्ड आमतौर पे वो एज इट इज ही बोल देते हैं। अब ये सुनते हैं कि इसको उसने कैसे आंसर किया है। ठीक है जी। Was a very determined young man. Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry, although in fact that never came about. Okay. They started off with option C. ठीक है, प्लान था मशीन टूल्स बनाने का, फैक्ट्री एक्चुअली बनी इसलिए थी, मगर ये आंसर क्यों नहीं है? दिस इज नॉट द आंसर। उसने क्या बोला अभी? दैट नेवर केम अबाउट, मीन्स जो करना चाह रहे थे वो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, अब उसने जो इंफॉर्मेशन आपको दी उसने क्या है कि एक्चुअली हम मशीन टूल्स बनाना चाह रहे थे फॉर द इंडस्ट्री, बट दैट नेवर केम अबाउट। पीछे करता हूं इसको, सुनने दोबारा। Was a very determined young man. Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry, although in fact that never came about. क्या हो गया? इसका है कि उसने बोला है, अब उसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया कि ये हमने कभी बनाया ही नहीं है फैक्ट्री के अंदर। डन, सो दिस इज नॉट द आंसर। And for the automotive industry, that is cars and lorries. अब ऑप्शन बी पे आ गए। ठीक है जी, मशीन टूल्स तो नहीं बने हैं। अब इस पे देखते हैं क्या बात की है उन्होंने। However, there was a delay of 5 years before that happened. There was a delay of 5 years before that happened. That means automotive tools जो उन्होंने बनाने थे। अब इसको कंटिन्यूटी में सुनेंगे आपको समझ आएगी। मेनली वो मशीन टूल्स बनाना चाह रहे थे जो कि कभी नहीं हुआ। Then they were also wanted to make automotive tools, but they have to wait for 5 years. 5 साल उनको वेट करना पड़ा। अब ये 5 साल कंपनी क्या करती रही? Because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. पहले 5 साल का जवाब आ गया। ऑप्शन नंबर ए तीसरे नंबर पे बोला है, तो पहले 5 साल वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बनाते रहे। इसका मतलब कि जब फैक्ट्री तैयार हो रही थी, अब अगर आपने ध्यान से सुना, उसने कहा था कि बिफोर प्रोडक्शन स्टार्टेड उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, जिसके अंदर उन्होंने स्पोर्ट्स गुड्स और हॉस्पिटल्स के लिए इक्विपमेंट बनाया। तो पहले 5 साल वो इनका फुलफिल करते रहे हैं, उसके बाद वो अपने एक्चुअल टारगेट पे आ गए थे जो कि ऑटोमेटिव टूल्स थे। अब क्वेश्चन आपका सेट है कि ओरिजिनली क्या बनाया है उन्होंने। अब ओरिजिनली का मतलब यहाँ पे हमने समझा था कि ये इनिशियली से रिलेटेड है। गुड, तो यहाँ पर अब इस वर्ड की जो सेंस है वो इनिशियल से थी, तो इनिशियली तो अब उसने हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए टूल्स बनाए, दैट्स व्हाई ए इज द आंसर। अगेन तीनों ऑप्शंस बोले हैं, जिसमें से एक कॉन्ट्राडिक्ट है, जो दूसरा है वो बनाया जरूर है मगर उन्होंने इनिशियली इसको नहीं बनाया, 5 साल बाद बनाया, और इनिशियली उन्होंने पहले 5 साल ये वाला काम किया। दैट्स व्हाई ए इज द आंसर। हाँ जी, यहां तक सब ओके है? और जी ये पहले दो क्लियर है। ठीक है, अब आगे सुनते टेप को दोनों चीजें करनी है, ट्रांजिशन भी सुननी है कि ट्रांजिशन कैसी हुई है, क्वेश्चन नंबर 13 पे कैसे गए, क्या बोला, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में से कुछ पिक करना, साथ इसका आंसर फाइनल करते हैं। Over the years, we've expanded the premises considerably. गुड, प्रेमिसेस का वर्ड आ गया, इट मींस के ट्रांजिशन हो गया है। सो नाउ वी नो द क्वेश्चन नंबर 13 हैज स्टार्टेड। अब इसमें यह था कि व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट कंपनी प्रेमिसेस। उसने भी जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने पॉज किया है, क्या बताया उसने प्रेमिसेस के बारे में, क्या किया प्रेमिसेस को उन्होंने?
से एक वर्ड उन्होंने बोला, एक्सपैंडेड। एक्सपैंड का क्या मतलब होता है? रिलोकेट करना। एक्सपैंड का मतलब है कि एग्जिस्टिंग प्लेस को फैलाना या बढ़ाना। यहाँ पे दोनों वर्ड आ सकते हैं। गुड। इसका मतलब है कि प्रेमिसेस के बारे में पहली इंफॉर्मेशन इस दी कि उन्होंने इसको एग्जिस्टिंग जगह को एक्सपैंड किया। Over the years, we've expanded the premises considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. ठीक हो गया। साइट पे ऑलरेडी जगह काफी बड़ी है, तो कभी जरूरत नहीं महसूस हुई कि हमने मूव करना है। ठीक है। अब ये तीनों जो बुलेट्स है ना, ये मूव पे सेट हुए हैं। द कंपनी हैज रिसेंटली मूव्ड, द कंपनी हैज नो प्लान्स टू मूव, द कंपनी इज गोइंग टू मूव शॉर्टली। उसने एक्सपेंडेड की बात की है, और हम अगर इसको जनरली देखें तो यहां से उसने बात शुरू की है। ठीक है। मीन्स कि रिसेंटली का रेफरेंस आ रहा है, मगर मूव की बात नहीं है, एक्सपेंडेड की बात है। कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ओवर द ईयर्स वगैरह हमने एक्सपैंड किया है और फिर उसने बात की है कि जगह काफी बड़ी है, तो प्लान्स तो नहीं है। अब एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, इसमें जो इंफॉर्मेशन है इतनी डायरेक्टली नहीं आ रही है। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिट वे में डाटा देना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लिसिट वे में डाटा आ रहा था, ये मैन्युफैक्चर किया, ये मैन्युफैक्चर नहीं किया, इस ईयर में फाउंड की कंपनी, इस ईयर में फाउंड नहीं की है। यहाँ पे वो कुछ और बोलते जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे जिसने वोकैबुलरी थोड़ी सी टफ कर दी है, इम्प्लाइड मीनिंग यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करते हैं और फिर हम ऑप्शन सी पे भी सुनेंगे। Considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods. फार फ्रॉम आइडियल, इस फ्रेज का मतलब क्या है? इसका मतलब द प्रोडक्शन साइट इज फार फ्रॉम आइडियल फॉर द लेटेस्ट मशीनरी। फार का मतलब तो आता है ना, फार का मतलब क्या है? दूर। और अगर मैं इसको फ्रेज में कन्वर्ट कर दूं, फार फ्रॉम आइडियल, आइडियल क्या होता है? आइडियल मीन्स कि जैसा आप चाह रहे हैं होना, जैसे आपने सोचा है कि खाका तैयार किया कि ऐसा होना चाहिए। अब इसको जोड़ लेते हैं, फार फ्रॉम आइडियल, जो हम चाहते हैं वैसा तो नहीं है। कंपनी की अभी जो साइट है ना, प्रोडक्शन साइट, वो फार फ्रॉम आइडियल है। किस चीज के लिए? फॉर द लेटेस्ट मशीनरी। मीन्स अगर हम इसको लेआउट पे चले जाएं, तो कह रही कि उस हिसाब से डिजाइन नहीं हुई है कि हम इसको लेटेस्टली इक्विप कर सकें विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मशीनरी। सुने जरा इसको फिर से। 5 years. Over the years, we've expanded the premises considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery We good? Far from ideal. and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. We plan to refurbish, not plan to move. अगले 5 साल में उनका प्लान इसको रिफर्बिश करने का। अब अगेन उसने तीनों ऑप्शंस को प्ले में लिए, चेंज कर चुके हैं, जगह चेंज करने का इरादा नहीं है, हम इसको एक आइडियल प्रोडक्शन साइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं अगले 5 साल के अंदर। मगर तीनों ऑप्शंस को उसने डायरेक्टली नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे मूव का वर्ड सेट हुआ है, इम्प्लिसिट वे में सारी इंफॉर्मेशन दी है उसने। अगेन वो एबीसी के फॉर्मूले में गया। अब इसमें हमारा फिट क्या होगा? जो इन तीनों में से ज्यादा फिट है वो ये है कि हमने मूव नहीं करना कहीं पे, हम एक्चुअली यहीं पे इसको एक्सपैंड या रिफर्बिश करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जो ए और सी है वो तो डायरेक्टली मूव से रिलेटेड है। ये उसने क्लियरली बोला है कि हमारा कोई प्लान नहीं मूव करने का। दैट्स माय आंसर इज बी। अब ये पावर है लिसन एंड रीड टेक्निक की, जिसके पीछे वोकैबुलरी काम कर रही है। अगर आपको वोकैब समझ आ रही है, आप लिसन एंड रीड साथ साथ कर रहे हैं, टेप के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, और क्वेश्चन को आपने फोकस किया कि यार प्रेमिसेस के बारे में क्या डिटेल उसने दी है, देन इट बिकम्स इजी। अब इन चारों क्वेश्चंस में सीखने की बात यह है कि 11 एंड 12 इज वेरी इजी, वो ज्यादा फैक्चुअल थे, ये कॉन्सेप्चुअल है जो कि स्पीकर के एटीट्यूड और पर्पस पे टिका हुआ है। कंपनी फाउंड कब की है, एक फैक्चुअल डिटेल है, डेट आनी थी हमारे पास,
कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है, एक फैक्चुअल डाटा है कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये नहीं करते हैं, इसीलिए वो दोनों क्वेश्चन आसान हो गए। तो जहां पर फैक्चुअल डाटा आता है इट बिकम्स इजी, जहां पर कॉन्सेप्चुअल बात आती है साथ ही काम मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, गुड, लेट्स डू दिस 14th और फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे इसके बाद। अगेन ट्रांजिशन को फोकस करना आपने। We intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers. ट्रांजिशन हो गया मगर उसने एक वर्ड भी नहीं बोला जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब उसने क्या किया, अब उसने जनरल कीवर्ड यूज किया। पहले 3 स्टेटमेंट में उसने क्वेश्चन कीवर्ड यूज किया, अब उसने जनरल कीवर्ड वाली टेक्निक लगाई है। गुड, अब हम पीछे जाते इसको सुनते हैं, प्लस उसने इस पूरी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दिया। ठीक है, लेट्स पिक इट अप। I'd better give you some idea of what your modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2. I'd better give you, ठीक है। अब जनरल जब कीवर्ड आता है ना, इसको कभी कभी वो वर्बल करते हैं और कभी कभी वो नॉन वर्बल करते हैं। ये बात हम आमतौर पे स्पीकिंग में ज्यादा हाईलाइट करते हैं। एक होता है वर्बल कनेक्टर, क्योंकि ये तो स्पीकर तो स्पीक ही कर रहा है ना, उसने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और एक होता है नॉन वर्बल, हम डेली बेस पे यूज करते हैं लोकल लैंग्वेज में। अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं और हमने 2-3 बातें इकट्ठी बोलनी है, हम जैसी एक बात खत्म करते हैं एक छोटा सा पॉज लेते हैं, कोई वर्ड नहीं बोलते, पॉज, खामोशी, और फिर बात शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहते हो जी क्या हाल है आपका, कहाँ से आ रहे हैं, अब 2 जुमले बोले हैं, दोनों में फर्क नजर आ गया। क्या हाल है आपका, ब्रीफ पॉज, वो मे बी 1 सेकंड का भी नहीं होता, और साथ ही पूछा जी कहाँ से आ रहे हैं, मगर आपको पता लग गया कि मैंने 2 बातें पूछी हैं आपसे और दोनों समझ भी आई हैं आपको। इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कनेक्टर। स्पीक करते हुए जरूरी नहीं कि आपने हर बार हाउ एवर, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ, देन बोलना है। अगर वो नॉन वर्बल कनेक्टर यूज करें तो इसका मतलब कि उसकी ट्रांजिशन सबसे डिफिकल्ट है। इन चारों क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट उसने ये वाला बनाया जब उसने इसकी ट्रांजिशन दी है। एक तो उसने आपको बताया ही नहीं कि मैं कनेक्टर कौन सा यूज कर रहा हूँ, और जो उसने कनेक्टर यूज किया जनरल का वो भी नॉन वर्बल यूज कर लिया, उसने वर्बल कनेक्टर ही नहीं यूज किया। वरना वो ये भी कह सकती थी देन, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट, फाइनली, उसने से कुछ भी यूज नहीं किया। वो वर्बल कनेक्टर थे मगर जनरल वाले। और इसके अलावा जो क्वेश्चन कीवर्ड होता है इसमें से कोई वर्ड पिक करना था। अब उससे कहा जी आई विल टेल यू, आई बी टेलिंग यू व्हाट यू विल बी डूइंग ओवर दिस 2 वीक्स। जैसी टेप स्टार्ट हुई थी, ये 2 वीक्स की इंटर्नशिप के लिए कुछ लोग आए हैं, फैक्ट्री का इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब उसने यहाँ पे वही वाली बात दोबारा रिपीट किया। तो ये वर्क एक्सपीरियंस 2 हफ्ते का आपका। अब उससे बताना था कि इसमें आप करेंगे क्या क्या 2 हफ्ते में। अब आपने सारी बात दोबारा सुननी, अब आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी इसकी कि इन्होंने कैसे इसको ट्रांसलेट किया। Moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so. अभी गुड, पॉज भी सुनाई दिया होगा अब आपको, और अब आपको ट्रांजिशन भी सुनाई दी होगी। अब पॉज क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। वैसे वो हर ट्रांजिशन में पॉज भी लेते हैं और कीवर्ड भी देते हैं। बात यह कि आपका लिसनिंग स्किल कितना डेवलप, आपको वो पॉजेस सुनाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर आपका लिसनिंग स्किल डेवलप है, आप टेप के साथ साथ चल रहे हैं, आपको वो पॉजेस भी सुनाई देंगे कि कब रुक जाते हैं टेप में और कब बात आगे लेके जाते हैं। गुड, अब उसने अब बात शुरू की है ABC की, सुनते जाते हैं। You know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department. जी,
ऑप्शन सी से स्टार्ट किया, टॉक्स बाय स्टाफ, प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ मैनेजर टू लर्न अबाउट देयर डिपार्टमेंट। ठीक है जी, यहां से उसने इसको स्टार्ट किया। मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूंगा, यहां से वो एक और ऑप्शन पे जाने वाले हैं और इन दोनों में से एक ही आंसर है इसके बाद जिसके ऊपर जाएगा, तो वहीं पे डिसीजन मेक हो जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि एंड पे उसने टीचर वाली बात बोली है, तो वो तो आंसर नहीं है इसका। ठीक है, तो पीछे करते हैं। with us so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department, starting this morning with research and development. And you'll all spend some time in each department. ठीक है जी, ऑप्शन सी से सीधा वो ऑप्शन ए पे आ गए, रिसर्च का वर्ड उसने यूज कर लिया। आगे और भी सुनते हैं थोड़ा सा। Observing what's going on and talking to people, as long as you don't stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week to find out how the group were getting on, but your school isn't able to arrange that this year. हर साल एक टीचर भी आता है एंड में, मगर इस साल नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी तो हो गया माइनस। अब सीक्वेंस तो ये रहा है, पहले सी बोला है, फिर ए बोला है और फिर बी। ये तो उसने क्लियरली कहा कि इस बार तो टीचर नहीं आएगा, अरेंज नहीं हो सका। अब ए और सी में से आंसर है टॉक्स बाय स्टाफ और टाइम टू डू रिसर्च, जिसको उसने बोला है कि आप हर डिपार्टमेंट में टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, मैं अब इसको पीछे कर रहा हूँ, आपने सुन के मुझे आंसर बताना है इसका। Research and development, and doing during your 2 weeks with us so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department, starting this morning with research and development. And you'll all spend some time in each department, observing what's going on and talking to people. हाँ जी, इट्स ए और सी। ए क्यों नहीं आंसर इसका? क्योंकि सी पहले बोल दिया इसलिए वो आंसर है। प्रेजेंटेशन के दौरान सर वर्कआउट कर रही थी, लेकिन सर उन्होंने तो उसका प्रेजेंटेशन तो डेली बाय डेली हर डिपार्टमेंट में वही सेम चीज होगी, लेकिन प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है जो आपने सुनना है वो रिसर्च है। अच्छा, जी सर, आप कुछ कह रहे थे इधर से। ठीक है, तो रिसर्च भी तो बोला है, फिर उसने कहा यू स्पेंड सम टाइम, वो टाइम टू डू तो रिसर्च उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप ठीक कह रही हैं, मगर ये इसका इसमें टेप में ऐसे नहीं बोला उसने। कितने लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है यहाँ पे? ऊंचा हाथ खड़े हैं। अच्छा चलो, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, बड़ा कॉमन सा एक वर्ड है आजकल यूज किया जाता है, उसको R&D बोला जाता है। क्या होता है R&D? R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसने एक्चुअली जो फ्रेज यूज किया ना, आप उसको पिक नहीं कर सके, उसने एक्चुअली डिपार्टमेंट का नाम दिया। उसने ये तो कहा ही नहीं कि आप रिसर्च करेंगे। अगर आप कैसा सुनाई दे रहे कि आपको रिसर्च का टाइम मिलेगा, तो ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नो, दिस इज वेयर कम्स कि लिसनिंग स्किल कितना डेवलप है, आपको समझ क्या आ रही है, बोल क्या रहे हैं। गुड। उसने ये कहा है कि आज प्रेजेंटेशन होगी स्टार्टिंग विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज इस डिपार्टमेंट से आपको स्टार्ट करेंगे। अब उसने डिपार्टमेंट का वर्ड नहीं बोला, रिसर्च एंड सॉरी डेवलपमेंट का वर्ड उसने बोला था, तो डिपार्टमेंट का नाम ले रहे हैं। आज आप इधर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर कहीं और कहीं और। तो अब एक्चुअली ये जो उसने वर्ड रिसर्च का बोला ना, आपको लगे कि शायद वो कह रहे हैं, इस फ्रेज का मतलब है कि आपको टाइम दिया जाएगा रिसर्च का। दे नेवर सेड दैट यू आर गोइंग टू डू रिसर्च, यू आर जस्ट गोइंग टू स्पेंड सम टाइम इन ईच डिपार्टमेंट। अब टेप को दोबारा सुनो। For modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years.
I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department, starting this morning with research and development. Good. Starting this morning with का जब आया फ्रेज तो उसके साथ उन्होंने बताया फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आज स्टार्ट करेंगे. आगे भी सुने उन्होंने क्या रिसर्च करनी है. And you'll all spend some time in each department, observing what's going on and talking to people. हाँ जी, रिसर्च तो करनी नहीं. वी गुड. अब 3 चीजें इसको अप्लाई होती हैं. पहली चीज, जब वो आपको टाइम देते हैं रीड वेरी केयरफुली, सिर्फ लाइनें नहीं लगानी थी, समझना होता है. दूसरी चीज, लिसन एंड रीड टेक्निक पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, सो दैट यू नो किस वक्त टेप कहाँ पे है. और तीसरी, एमसीक्यूज में क्वेश्चन को मेन फोकस रखना है. अगर आप क्वेश्चन के मुताबिक सुन रहे हैं और जो लिखा हुआ है उसको सुन के समझ रहे हैं कि यार ये तो कुछ और लिखा और बोल तो कुछ और रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि आंसर नहीं. अब इसमें ऑप्शन ए उसने एक्सप्लिसिटली क्लियर इन्फॉर्मेशन दी है कि ये करना है, ये होगा बेसिकली, ये वाला काम हो सकेगा, ये तो होगा ही नहीं इस दफा. ठीक है. और इसके ऊपर एक्चुअली जो फ्रेज लिखा है इस पर तो बात ही नहीं हुई है, सिर्फ उसने ये वाला वर्ड यूज किया. दैट्स द ट्रिक. सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू वाज द टफेस्ट वन इन चारों में से. गुड. हाँ जी, यहां तक बात ओके हुई है. अगर कभी आप फर्स्ट ईयर आंसर ना निकले तो प्रेप का मकसद ये होता है कि उसी पोर्शन को बार बार सुनने के, इसमें ऐसा क्या हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रही है. रिसर्च भी तो बोले ये क्यों नहीं आंसर हो सकता, वो टाइम स्पेंड करने की बात करे, तो व्हाई नॉट दिस इज द आंसर. देन यू विल बी मोर, तब आप जितना उसमें डीप जाएंगे आपको समझ आएगी. मगर ये प्रेप मोड में है. फिर आप जब एक्चुअल टेस्ट में जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन सुनेंगे आपको उसको पिक करना आसान हो जाएगा. आपको पता होगा कि ये वाला वर्ड क्यों नहीं आंसर और कौन सा फ्रेज आंसर बनेगा. सो दैट्स द लर्निंग बेसिकली. हाँ जी, आगे गुड. ठीक है, हमने कवर किया है आपके ब्लैंक्स की टेक्निक और एमसीक्यूज की टेक्निक. मैं ये टेस्ट पूरा नहीं कर सका, बट आई थिंक के अब आपको पता है कि इसको करना कैसे है, क्योंकि हमने एमसीक्यूज की बात भी कर ली है. जो आपके ये सेक्शन 3 के एमसीक्यूज हैं वो सारे वैसे ही जैसे भी हमने किए हैं, ये सेम वही वाले एमसीक्यूज हैं. और अगर मैं पार्ट 4 पे जाऊं तो उसके अंदर आपकी ब्लैंक्स है. मैं इसको थर्सडे को करवा सकता हूँ, मगर मैं थर्सडे को इसलिए नहीं करवाना चाह रहा. रीजन ये है कि इस बार थर्सडे को मैंने कुछ एक्टिविटीज प्लान की हैं आपकी स्पीकिंग की. हम स्पीकिंग लेक्चर ना होने के बराबर करेंगे, हमने एक्टिविटीज ही करनी है. कुछ इस तरह से मैं प्लान करना चाह रहा हूँ कि आप में से बैठा हुआ हर शख्स कुछ ना कुछ बोले उस दिन. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. ठीक है. और आपने क्या बोलना है, आपको मैं कंटेंट पहले दे दूंगा तैयारी के लिए, परेशान नहीं होना. ऑनलाइन फ्रेंड्स आपके लिए भी है. हो सकता है आज मुझे मिल जाए कंटेंट. मैंने कुछ टीचर्स को एक्टिविटीज की थी प्लान करने के लिए, वो होपफुली आज तैयार हो जाएंगी. कल जब आप क्लास में आएंगे आई विल हैंड ओवर यू द टॉपिक्स, द थिंग्स विच यू नीड टू प्रिपेयर, ताकि जब आप थर्सडे को मैं आपको पूछिए अब आपकी बारी है बोलने की तो आप बोल लें उसको. अगेन, आंसर याद करने से स्पीकिंग नहीं ठीक होगी, उसकी डिलीवरी से स्पीकिंग ठीक होगी. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू इन द क्लास, सो दैट आई कैन गाइड यू ऑन द टोन पिच एंड ईच एंड एवरीथिंग. ऐसे फिर मैं आपको गाइड नहीं कर सकता. ओके. सो अगर हमें टाइम मिला तो विल डू इट, अदरवाइज ये अब प्रैक्टिस के साथ है. इसके मैंने पीछे भी 1-2 लेक्चर्स कवर किए हैं, अब वहां से भी इसको देख सकते हैं. ओके हो गया.